Hi everyone, you're welcome to my professor note. This is Bhupesh Sharma. Hey, in this video, we're going to do the revision on the British literature for our upcoming UGC NET English Literature December 2025 exam. This video is going to help you with the assessment of your preparation as well as the revision of the important topics. You will get to know कि हमें कितनी चीजें हमने अभी तक कवर कर ली हैं और अगर कर ली हैं इस वीडियो के थ्रू आपका उन चीज़ों का रिवीजन भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे पिक किए हैं दिस वेरी वीडियो। So let's start with the very first question without wasting any time. Which of the following texts has the subtitle A Novel Without a Hero? Why a novel without a hero? Because it is a representation of the British society that does not have an ideal figure that can be called a hero, because every character, every person here is of the deceptive nature and a superficial nature, right? The same kind of character we have in this novel, whose name is derived from John Bunyan's Pilgrim's Progress. Pilgrim's Progress. And that is, you must have got to know by now, Vanity Fair. And this novel was published when? During the era of revolutionary movements in the 18 1848। ठीक है, इस नॉवल के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसके अलावा इस नॉवल के बारे में एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके दो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। एक है पैकी शार्प, who is a penniless person, but she is a very pretentious nature and gain respectability for that, but later on क्या होता है कि उसकी उस respectable इमेज है उसका कोई substance नहीं है। She was faking things. She was of a deceptive nature. Another यहाँ पे Amelia Sedley है। Amelia Sedley है, who is spoiled and a rich kid। ठीक है, उसके पास सब कुछ है, इसके पास कुछ भी नहीं है। So none of these characters, justify the role of a hero. तो it's a novel without a hero। ठीक है, तो ये इस चीज यहाँ में देखने को मिलती है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट इस नॉवल के बारे में ये भी है कि इट यूजेस द बैकड्रॉप ऑफ द वॉर, नेपोलियन वॉर, न्यूपोलियन वॉर। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हमें देखने को इसमें मिलती है। ठीक है, लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन नाउ। द टर्म न्यू वुमेन, जब मैं न्यू वुमेन का नाम हम लेते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? एन एजुकेटेड एन एजुकेटेड 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 एंड इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वुमेन, है ना? ये इमेज आती है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट द डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म हियर, एंड दिस इज गिवन बाय द सारा डैंड, इन विच ऐसे द न्यू आस्पेक्ट ऑफ द वुमेन क्वेश्चन इन 1894। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। आपको पता है कि नए नए टर्म्स यूजीसी नेट हमसे पूछता रहता है। ठीक है, नाउ लेट्स go to the another question here. Which of the following is not a work by John Ruskin, a very important critical figure of the Victorian age? Na? Victorian age में he was a great art critique, and he had made a great addition to the field of criticism, right? Famously known for the term called the aesthetic fallacy that he has coined in this work, The Modern Painters। क्या term थी? Aesthetic fallacy। It has a negative connotation, but अब at present aesthetic fallacy को कैसे देखा जाता है? As एक valuable tool देखा जाता है poetry में to attribute the human emotions, humans attributes to the non-human things। ठीक है, but he said it is a fallacy that emotion overrides द एविडेंस। इसने कहा कि जो जो आपके पोएट्स हैं वो इमोशनल ट्रेट्स एट्रीब्यूट कर देते हैं नॉन ह्यूमन थिंग्स को। उससे क्या होता है? दैट सैक्रिफाइसेस द ट्रूथ। हम ट्रूथ नहीं देख पाते हैं। सो इट हैज अ नेगेटिव कोनोटेशन। पैथेटिक फेलिसी मतलब इमोशन की वजह से फेलिसी का होना। तो नॉन ह्यूमन चीजों को हमें जो क्या है इमोशन एट्रीब्यूट्स नहीं करने हैं। ही वाज अगेंस्ट इट। ठीक है, पर आज इसे और तरीके से देखा जाता है। इट हैज अ नेगेटिव कोनोटेशन। ठीक है,
तो पैथेटिक फैलेसी का मतलब ये है कि जैसे कि आपने कहा कि आर लीव्स आर डांसिंग, ठीक है, डांसिंग लीव्स कह दिया, ये कोई ट्रूथ तो नहीं भी है। लीव्स कहाँ डांस करते हैं? बट पोइट्स ने क्या कर दिया, रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर दिया, एंड ही वाज अगेंस्ट इट। तो इनके वर्क इसमें से कौन कौन से नहीं है? जॉन रस्किन का मॉडर्न पेंटर्स है, सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर है, स्टोन ऑफ वेनिस है। ये वाला नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी यहाँ देखें। इसका एक तो पब्लिकेशन डेट इंपॉर्टेंट रहता है, दूसरा सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर 1849 है, ठीक है, इसमें सेवन प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग डिजाइन के बारे में डिस्कस किया गया है। स्टोन ऑफ वेनिस 1851 टू 53, 53 डेट आपने याद रखना है, इसका 49 और इसका 60, ठीक है। एक बार कोई क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ही प्रेज द रेनेसांस स्टाइल ओवर द गॉथिक आर्किटेक्चर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, दैट ही आस्क्ड टू टेक इनटू कंसिडरेशन द एथिकल लेबर, labor, one thing, and the second thing he asked for कि आपका जो आर्किटेक्चर है that is the representation of the social wealth, है ना, आपकी सोशल स्टेटस की वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन है कि सोसाइटी के क्या हालात है, वो उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। Now come to the another question here. Which of the following works was not written by Thomas Carlyle? He's one of the very significant philosophical voices of the Victorian era. And जॉर्ज इलियट ने क्या कहा था? जॉर्ज इलियट ने कहा था कि दैट ही हैज इन्फ्लुएंस्ड द एवरी सुपीरियर माइंड ऑफ द विक्टोरियन एज, है ना, एंड शी वाज आल्सो वन अमंग द अदर, ठीक है, मैरी इवंस वाज हर नेम। तो इनका जो वर्क है आपको पता है कि साटर रिसार्टर है, जिसका मतलब है द टेलर, द टेलर री टेलर्ड, टेलर्ड। यहाँ पे जो क्लोथ है उसको क्या यूज किया गया है, उसको एज अ मेटाफर यूज किया गया है, जिसे टेलर और रिटेलर किया जाता है। और यहाँ पे इसके थ्रू ये रेफरेंस देना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो कन्वेंशन है, जो इंस्टीट्यूशंस है, उनको भी रिटेलर्ड किया जाना चाहिए। वो भी वॉर्न आउट हो जाते हैं कपड़े की तरह, तो अब उन्हें सिया जाना चाहिए, उनकी मेंडिंग होनी चाहिए, रीमेकिंग होनी चाहिए। द क्लॉथ्स हैव बीन वॉर्न आउट, similarly, we have the convention, they have also worn out. Let's create new convention. Let's mend them. Let's do some changes in it, right? In order to have a better society. अगर उन्हीं घिसी पिटी चीजों को हम लेके चले रहेंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे. That's what he is trying to refer here. और एक जर्मन वर्क से इनका ये क्या था, इन्फ्लुएंस था, डायोजीनियस प्यूफल्सड्रॉक करके, काफी ऑड नेम है, आप इसे सर्च भी कर सकते हो और मैंने आगे भी इसे मेंशन किया हुआ है। दूसरी बात आती है चार्टिज्म। चार्टिज्म के बारे में मेन चीज क्या जानने की है, इनका वर्क है चार्टिज्म, थॉमस कार्लाइल का वर्क है चार्टिज्म, ठीक है। मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन भी बताता हूँ और साथ में इन चीजों को भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ में इसका पब्लिकेशन डेट भी मिल गया 1839। अब चार्टिज्म क्या था? चार्टिज्म आपको पता था कि पता है कि पीपल्स, नहीं पता है तो बता देता हूँ कि पीपल्स चार्टर करके इनका एक मूवमेंट चला। पीपल चार्टर्स में क्या था, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। किसने तैयार किया ये डॉक्यूमेंट? जो लंदन की लेबर क्लास थी, वर्किंग क्लास के जो लोग थे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया टू हैव अ पॉलिटिकल एंड द वोटिंग राइट, कि हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें वोटिंग का अधिकार भी होना चाहिए, और देयर शुड नॉट बी द क्राइटेरिया ऑफ द प्रॉपर्टी टू ओन इन ऑर्डर टू डू द वोटिंग। क्योंकि जब आपका रिफॉर्म बिल आया था, आपको पता होगा 1832 में जो हमारा रिफॉर्म बिल आया, तो उसमें क्या आया, उसमें वोटिंग का सबको राइट तो मिल गया, ठीक है, सफरेज मूवमेंट हुआ, वोटिंग का राइट तो मिल गया, बट पुअर पीपल को नहीं मिला। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट ओन द प्रॉपर्टी। बाकी जो आपकी आई थिंक जो वुमेन्स है उनको तो बाद में आई थिंक 19 कुछ में ना वोटिंग का जो राइट था वो उनको मिला, उनको काफी लेट मिला, ठीक है, उनको काफी जद्दोजहद उस चीज के लिए करनी पड़ी। तो ये उस पे उनका बेस्ड आपका वर्क है। ये एसेंशियली एक क्या था, एक डॉक्यूमेंट था जहां पे उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स के लिए अपनी डिमांड रखी थी। उससे रिलेटेड चीजों को इन्होंने यहाँ पे डिस्कस बखूबी किया है, क्योंकि सोसाइटी के बारे में लिखते हैं, किसी का दर्द है, एक वो ऑथर, एक फिलोसोफर अच्छे से समझता है, ऑब्जर्व करता है, एंड दे राइट इट डाउन इन देयर वर्क, एंड दैट्स व्हाट ही हैज डन। इसके पब्लिकेशन डेट्स आपने याद रख लेने हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट फास्ट इन चीजों को कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास भी वक्त नहीं है, तो
Here we have another question. Robert Browning, a very huge figure of the Victorian era, famously known for what? Dramatic. Dramatic is the who took this genre of writing to the greatest heights. The lost leader, he called to whom? Who was a liberal at a time, but he betrayed his idols. Betrayed his idols for what? For a hand full of silver and a ribbon band, and shifting to the conservatism. That is who? That is your Wordsworth. ये बन गए थे ना 1850 में, इन्होंने क्या किया था? 1850 में इन्होंने क्या किया था? 1850 में ये बन गए थे आपके पोइट लॉरेट, और इन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी पेंशन। ठीक है, अब गवर्नमेंट के नुमाइंदे बन गए थे, और रॉबर्ट ब्राउनिंग को ये चीज़ क्या है, हजम नहीं हुई, तो इन्होंने इस पे पोइट्री अपनी लिख दी, लॉस्ट लीडर, कि हमारा लीडर जो है वो लॉस्ट हो गया है। Now comes the another great work here from the age of Elizabethan Novum Organum, that also means the new instrument or tool। ठीक है, एक नया मेथड। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए था ये? साइंटिफिक क्वेरी के लिए, साइंटिफिक इंक्वायरी के। कौन ये इंक्वायरी करते थे? हमारे फ्रांसिस बेकन साहब ये इंक्वायरी करते थे। इन्होंने क्या किया, क्या कहा कि चार तरह की फैलेसीज हैं, चार तरह के आइडल्स हैं। आइडल्स का मतलब है यहाँ पे एरर्स, फ्लॉज, जिसकी वजह से आपका जो जो माइंड है ना, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। माइंड में जो इमेज आती है किसी चीज के बारे में, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है ड्यू टू दीज फोर बायसेस। ये बायसेस है। एक बायसनेस है ऑफ द केव। बायसनेस ऑफ द केव है कि आपके कुछ प्रेजुडिसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज और एजुकेशन। आप अपनी नॉलेज और एजुकेशन के हिसाब से चीजें देखोगे। आप एक रिसर्च कर रहे हो, आपके पास नॉलेज है, आपका एक एक्सपीरियंस है, आप उसी सेम एक्सपीरियंस को और नॉलेज को उस चीज पे थोप देंगे। ठीक है, मे बी आपको जानने की जरूरत है कुछ और ज्यादा, उसकी वजह से आप कभी वो साइंटिफिक इंक्वायरी कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा है आपका आइडल्स ऑफ मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में ये रेफर करते हैं, किस चीज को मार्केट प्लेस में रेफर करते हैं? टू द एरर्स ऑफ द लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। आपने कोई बात कहनी है और वो क्लियरली कम्युनिकेट हो ना पाए, आपकी कुछ फाइंडिंग्स थी, कम्युनिकेट कुछ और हो गया, तो हो गया ना एरर। सबसे पहली चीज थी आइडल्स ऑफ ट्राइब। ह्यूमंस ने, हमारे बिहेवियर में बायसेस होते हैं। हमने वो चीज देखनी ही नहीं है जैसी वो देखी जानी चाहिए। हमारे हमारे मन के अंदर ऐसा है कि नहीं, इफ देयर इज there is a person and he is wearing certain kind of cloth, he is behaving in a certain way, that means they are not a good person, because this is how we are being taught। हमारे अंदर वो बायस है ना, हमारे अंदर वो बायसनेस है, हम उस चीज को क्लियरली कभी देख ही नहीं पाएंगे। एक तरह का क्या हो गया, वो एरर हो गया। देन आता है अनदर, हमारा अनदर हमारा क्या है यहाँ पे एरर ऑफ द थिएटर। डॉगमेटिक फिलोसॉफिकल सिस्टम्स अकिन टू थिएटर। अब क्या होता है थिएटर में, क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो फिक्शन का वर्क होता है उसे एज अ रियलिटी प्रेजेंट किया जाता है। लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा हुआ है, वो एज अ रियलिटी ही उसे इम्पोज करते हैं ना। तो वो क्या है कि मतलब फैब्रिकेट करना, इम्प्लीकेट करना, जैसा है नहीं, आप झूठ को सच बताने की कोशिश करते हो। तो ये तीन एरर के बारे में इन्होंने बात करी है, टेम्पल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। और essentially there are four types of idol, one is a tribe। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच राइटर डिड नॉट बिलोंग टू दी मूवमेंट पोएट। मूवमेंट्स पोएट, आपको पता है कि एक द मूवमेंट करके एक मूवमेंट, लिटरेरी मूवमेंट चला, कब? 1950s में। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिफ्ट कर दिया फ्रॉम दी रोमांटिक पोइट्री और द विक्टोरियन पोइट्री टुवर्ड्स द मॉडर्न पोइट्री। मॉडर्न पोइट्री में क्या था? मॉडर्न पोइट्री में आपका जो क्लियर, जैसे कि आपका इमोशंस होते थे, आपका रेटोरिकल नोट होता था। ठीक है, रेटोरिकल लैंग्वेज यूज की जाती थी चीजों को प्रेजेंट करने के लिए इन योर रोमांटिक पोइट्री। इसकी जो पोइट्री थी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, वो बिल्कुल क्लियर थी, आयरॉनिकल थी। ठीक है, जो पोइट्स थे रोमांटिक के, वो कैसे थे? वो साधारण लोग थे, आम लोग थे, रूरल लोग थे। बट हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द अर्बन लाइफ। ठीक है, जहाँ पे लोग कैसे हैं, आयरॉनिकल है, डायरिकल है, शाणे हैं, है ना, शाणे लोग हैं समाज में, सिटीज में। उन लोगों को रिप्रेजेंट अगर करना है, आपको वैसे ही फिर लिखना पड़ेगा।
स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें क्लैरिटी के साथ, आयरॉनिकल फॉर्मल स्ट्रक्चर है ना। अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करके रखी हैं कि तुम यहाँ, मैं यहाँ। ठीक है। रोमांटिक लोग कैसे होते थे आपको तो पता ही है। दे शेक हैंड्स, दे हग ईच अदर। अब जो यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ी दुनिया अलग हो गई है। टीएस इलियट को हम देखते हैं, हम कहते हैं कि उनकी जो पोम है वो जो है फ्रेगमेंटेड है, ऑब्सक्योर है। भाई दुनिया भी तो वैसी है ना। इंडिविजुअलिज्म है, सबकी अपनी अपनी सोच है ना। कि तुम मुझे समझ नहीं सकते, नहीं समझ सकते, तो पोइट्री में भी उसने सेम चीज पोर्ट्रे कर दी। अब हम उसे नहीं समझ सकते तो उनकी क्या गलती है। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं किसमें, मूवमेंट में। कौन इस मूवमेंट से बिलोंग नहीं करता। फिलिप लार्किन इस मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथ जेनिंग्स भी इस मूवमेंट से बिलोंग करती है। टेड ह्यूजेस भी समवेयर ओवरलैप करते हैं, क्लियरली नहीं। पर स्टिल ही इज केप्ट हियर। और इसके लिए आप रेफर कर सकते हो, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ना है इस मूवमेंट के बारे में थोड़ा, आप राउटलेज की जो किताब है, तो अगर तो आपको यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के लिए तैयारी करनी है तो माय प्रोफेसर नोट का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। बट अगर आपको थोड़ा डिटेल में जाना है, क्यूरियोसिटी है, तो राउटलेज का पेज नंबर 421 से लेके 425 तक काफी से स्टडी। ठीक है। स्टडी मटेरियल चाहिए, एग्जाम क्रैक करना है, माय प्रोफेसर नोट का स्टडी मटेरियल है। ठीक है। आप रेफर कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, क्लासेस भी है। लास्ट मोमेंट में असेस करनी है, प्रेपरेशन मॉक टेस्ट भी है। रास्ता पता नहीं है, रोड मैप पता नहीं है, मेंटरशिप भी है। तो व्हाट वी हैव टू डू, यू सिंपली हैव टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। ठीक है। तो डिलन थॉमस एक रोमांटिक आदमी थे। ये तो अपने दिल की बात को साफ साफ बयां कर देने वाले आदमी थे, डिलन थॉमस। इनके अंदर जो एक पावर थी, जो एग्रेशन था, ही रॉट अबाउट एवरीथिंग, डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट। अपने फादर के लिए लिखा था जिस मोमेंट उनकी डेथ होने वाली थी। ही आस्क्ड हिम टू बी रिबेलियस, टू बे इन अ रेज, टू रेव, है ना। एग्रेसिव आदमी थे और इनकी तो डेथ भी ऐसे ही हुई थी। ही डाइड, ही वाज अ वेरी राइटुअस नेचर। डिलन थॉमस अपनी पोइट्री के लिए कम और उनके ड्रिंकिंग नेचर के लिए, है ना, राइटस नेचर के लिए ज्यादा जाने जाते थे। ही यूज्ड टू ओवर ड्रंक। ठीक है। दैट वाज द काइंड ऑफ पर्सन ही वाज व्हेन ही डाइड वेरी यंग। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर अपीयर्ड इन, कब प्रीफेस टू शेक्सपियर इनका, फेस टू शेक्सपियर इनका आया, नहीं 1765 में आया। इस 1765 में इन्होंने क्या किया, क्या किया इस प्रीफेस में, इन्होंने इन्होंने जस्टिस किया टू शेक्सपियर के साथ। इन्होंने डिफेंड किया शेक्सपियर को फ्रॉम द न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म, जहां उन्हें क्रिटिसाइज किया गया फॉर नॉट फॉलोइंग द यूनिटीज इन द रूल्स दैट वर लेड बाय द क्लासिकल ऑथर्स। क्लासिकल ऑथर ने जो रूल लेड किए थे, इन्होंने फॉलो नहीं किया उस चीज को। इन्होंने बताया कि अच्छा भाई क्या रूल इन्होंने फॉलो नहीं किए। इन्होंने बताया कि जी इन्होंने जो है वो ट्रेजिक कॉमेडी का एक नया जॉनर इजाद कर दिया। ही केम अप विद अ न्यू जॉनर कॉल्ड द ट्रेजिक कॉमेडी। ये कैसे हो सकता है, या तो ट्रेजेडी हो सकती है या कॉमेडी हो सकती है। अरिस्टोटल ने सीधे सीधे कहा, इन्होंने कहा कि भैया आपकी जिंदगी है, उसमें कभी दुख भी है, कभी सुख भी है। ही इज रिप्रेजेंटिंग लाइफ in a purest form. There's no other dramatist ever born who has represented the human life as clearly as Shakespeare did. All their emotion. किसी ने नहीं किया। हाँ, इन्होंने एक बात पे इनको यहाँ पे सटायराइज भी किया, इनको क्रिटिसाइज भी किया। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अ बैलेंस्ड क्रिटी। क्या कहा कि इमोरल इनके प्लेस, क्या थे, इमोरल प्लेस। इनके प्लेस में जो वर्च्यू वाले लोग थे, ठीक है, उनको कभी रिवॉर्ड नहीं मिला। और जो इविल लोग थे, उनको कभी पुनिशमेंट नहीं मिली। आपने देखा होगा किंग लियर में क्या हुआ। किंग लियर का आगे क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे, है ना। आपने देखा कि उसमें कॉर्डेलिया के साथ क्या हुआ। शी सेड एवरीथिंग क्लियरली दैट हाउ मच आई लव यू फादर, राइट। रीगन ने, गॉनरल ने, उन्होंने प्रिटेंड किया उनको, ही गिव देम एवरीथिंग एंड शी वाज द वन हु एंडेड अप इन द जेल एंड डाइड। T.S. Eliot wrote two essays on Milton. The Milton one published in 1936. When was the second Milton two first published? ठीक है। अगर आपसे यूजीसी ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना जहां पे खाली डेट है, तो आपने भी डेट को याद करके निकल जाना है बस। ज्यादा दिमाग क्यों खराब करना जब खुद ही यूजीसी हमारी क्यूरियोसिटी को असेस नहीं करना चाहता, जब यूजीसी खुद
हमारी नॉलेज ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी को नहीं चेक करना चाहता, तो फिर हम भी डेट पढ़ के रट के चले जाएंगे, ठीक है, और लेके आएंगे जेआरएफ। मिल्टन वन कब अपीयर हुआ? 1936 में अपीयर हुआ। किस में अपीयर हुआ? एज अ नोट ऑन वर्स ऑफ जॉन मिल्टन हुआ। किस में? एसेज एंड स्टडीज ऑफ इंग्लिश एसोसिएशन, 1936 में हुआ। सेकेंड जो इनका था वर्क, मिल्टन सेकेंड, दैट ओरिजिनेटेड एज द हेनरीटा हर्ड्स लेक्चर, ठीक है, 1947 में दिए थे। इसको याद करने की जरूरत नहीं है कोई, 1960 याद रखना, ठीक है। चलो जी। Which Shakespearean character puts this question, who is it that can tell me who I am? जब गॉनरिल ने रिब्यूक किया टू द नाइट of King Lear for behaving in an inappropriate manner, and King Lear was stripped of all his power. He has to left his his palace, and it is a scene before he went out in the storm. King Lear said this: "Who is it that can tell me who I am?" कि मैं कौन हूँ? तेरे को तुम अब बता रहे हो. And the fool said, जो एंटरटेन करने के लिए होते थे उनके पैलेस में, उनके किंगडम में, क्या कहा? Yours shadow, ये आपकी शेडो ही बता सकती है, उसको तो फ्लैटरी करनी है। किंग लियर में ये किंग लियर ने ये कहा था, है ना? सो ये है, कभी भी लोग जो आपके साथ दिखावा करते हैं कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे, पता चल जाता है ना? कि सर हम आपकी वीडियो को लाइक कर देंगे, हम आपकी वीडियो में कमेंट कर देंगे, मेरे को दिख जाएंगे वो बच्चे, है ना? मतलब लाइक चीजें दिख जाती हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप लोग तो करते हैं, मुझे पता है ना? तो ये चीज है, दिखावे पे नहीं जाना है, बस काम पे जाना है। बोल के कुछ नहीं होता है। वैसे ही आप बोलोगे सर मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, रिजल्ट दिखा देता है चीज को, ठीक है, आपने कितनी तैयारी की है रिजल्ट बता देगा। अब आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि कैसे पढ़ना था, क्या पढ़ना था, इतनी स्ट्रेटजीज, इतनी गाइडलाइंस आपके लिए अवेलेबल है ना, कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, कोई हद नहीं है। तो होना चाहिए आपका नेट जेआरएफ क्रैक, ठीक है, बिकॉज कुछ जेआरएफ फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं। हु इज द ऑथर ऑफ लाइव्स ऑफ द नॉवलिस्ट? वॉल्टर स्कॉट। जब हमारे से नाम पूछा सीधा नॉवल का, एक हु इज द ऑथर, हम भी उतना बताएंगे। अब ये तो नहीं कहा है कि कोई रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस वेरी लिमिटेड नंबर है। ये तो नहीं पूछा है कि इसका क्रिटिकल एनालिसिस कर दो, सीधा पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ लाइव्स ऑफ द नॉवेलिस्ट? जी वॉल्टर स्कॉट है। यूजीसी को उतना ही देना है हमने भी। ये एज अ प्रीफेस लिखा गया था। अब ये आगे का क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके लिए हमने क्या करना है? वी हैव टू बी, है ना? Ballantyne's novelist library. During this period, he wrote this, and it was at a surface. The lives of the novelist. इन्होंने 14 नॉवलिस्ट के बारे में इसमें डिस्कस किया है, जिसमें डेफो, रिचर्डसन, फील्डिंग एंड सॉमलेट आर द इंपॉर्टेंट फिगर्स। देन आता है क्वेश्चन, इन whose poem do we find the following lines? I wander through each charted street which are controlled now, near where the charted Thames भी अब प्रॉपर्टी बन के रह गई है अथॉरिटीज की, does flow, and mark in every face I meet, निशान पड़े हुए हैं, मार्क्स ऑफ वीकनेसेस, मार्क्स ऑफ वो, दुख में झुलसे हुए हैं लोग। ये कौन कहता है? ये हमारे विलियम ब्लेक जी कहते हैं उनके सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस कौन गा सकता है? जिसके पास तजुर्बा होता है। एक्सपीरियंस वही होता है तजुर्बा। तजुर्बा कैसे आता है? तजुर्बा आता है घिस घिस के, कि बहुत सारे दुखों को झेल करके। तो लंदन स्पोम का नाम है जहां पे ये चीजें कही गई बाय विलियम ब्लेक। टॉक अबाउट अ लंदन सिटी, how that is. You wander through each charted street near where the charted Thames does flow. कोई नेचुरल कंट्रोल नहीं है अब, अथॉरिटीज का कंट्रोल है। चार्टेड होता है ना, मैप्ड आउट होती है, कंट्रोल्ड होती है, चार्टेड, है ना? तो उन चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इनका 1794 में आया है, उससे पहले इनका सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस आया है। तो ये आपके लिए एक टास्क है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस कब पब्लिश हुआ है, इतनी सी मेहरबानी आपने कर देनी है कमेंट सेक्शन में लिख करके, ठीक है। द लायंस ओपन ब्लेक्स क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड
स्पीकर ऑब्जर्व यूनिवर्सल सफरिंग, इन चीज़ों के बारे में जानने की उतनी जरूरत नहीं है। मेन यही था कि ये लंदन पोम में ये चीज़ें लिखी गई हैं, दैट अपीयर्ड अंडर द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस कलेक्शन। ठीक है, दूसरा इनका सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक डार्कर काउंटर पार्ट पे पोइट्री लिखी है। जैसे कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में लिख दिया लैम्ब पे, ठीक है ना, क्यूट फिगर्स, इनोसेंट, प्योर हार्टेड। और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में टाइगर टाइगर टाइगर। तो टाइगर क्या है, काउंटर पार्ट है। टाइगर ईट्स लैम्ब, वो प्रे करता है, हंट करता है, मार डालता है। तो विलियम ब्लेक ने, इससे ये पता हमें पता चलता है कि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस आपके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। उनको हमने ध्यान से याद करना है, उसके पब्लिकेशन डेट को स्पेसिफिकली, क्योंकि नाम ही पूछे जा रहे हैं। कहीं भी आपने देखा कि आपको कुछ और ज्यादा जानने की कोशिश करनी है, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी और ज्यादा जानने की कोशिश आपको करनी पड़ सकती है। द क्वेश्चन इज, डॉक्टर फॉस्टस वांटेड मेफिस्टोफिलिस टू अपीयर इन द गाइज ऑफ हु is a better person, because he is has a very horrific and a repulsive face, a hideous devil he is, जिसका मुंह देखा नहीं जा सकता. He recoils, he stepped back in a horror and commands, thou art too ugly to attend on me, go and return an old Franciscan friar, that holy shape becomes a devil best. जो होली लोग होते हैं, जो क्लर्जी है ना, वो अच्छे डेविल बनते हैं, वैसा सा बन के आओ, ये चेहरा तुम्हें देख नहीं सकता, है ना. हटाया रही कि उनके चेहरे अच्छे हैं, पर वो शायद तुमसे ज़्यादा ज़्यादा डेविल है, ठीक है? तुम तो अपना पूरा सही चेहरा दिखा रहे हो, ऐसा मत करो, उन होली शेप में होके आओ। इट्स अ आयरॉनिक चॉइस मॉक्स क्लरिकल हिपोक्रेसी। तो वही है कि मतलब सोने सोने चेहरे, है ना? के पीछे की नागा वर्गा ज़हर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a characteristic of mystery plays? Which of the following is not a characteristic of mystery plays? Mystery plays क्या थे? mystery plays में आपके biblical stories पे आपका ड्रामा प्रेजेंट किया जाता था, ठीक है? तो ये तो सही है. दे डिपिक्टेड द लाइव्स ऑफ सेंट, नहीं ये मिरेकल में होता, ये मिरेकल प्लेस में होता था, तो ये नहीं है. द कैरेक्टर्स इन द प्लेस पर्सोनिफाइड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में आपके वर्च्यूज हो गए, जहाँ पे आपके वर्च्यूज एज अ पर्सन लाए जाते थे, गुड, बैड, इविल, है ना, जो कि एवरी मैन इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट, एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द मोरालिटी प्लेस. यहाँ पे थोड़ा सेक्युलराइज हो गया था ड्रामा, हम रीजनल रिलीजन के थीम से बाहर आ रहे थे, है ना. वहाँ पे हम लाइफ के बारे में इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे. वी वर नॉट स्टक ओनली टू द लाइव्स ऑफ सेंट्स एंड द थीमेटिक एंड द थीम्स ऑफ बाइबल. तो ये मोरालिटी प्लेज में हमारा होता है. They were mostly performed in a vernacular languages. Yes, they were performed in a vernacular languages because क्या थी आपकी बाइबल लैटिन लैंग्वेज में थी, लोगों को वो समझ नहीं आती थी, तो उनको समझाने के लिए ये बिब्लिकल प्लेज वहाँ पे लोग करते थे अपनी भाषा में, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, ताकि उनको बताया जा सके, क्योंकि लैटिन तो उनकी समझ में आ नहीं रही थी. और यहीं से ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कि अभी तक क्लर्जी मनमानी चीजें करवा रही थी, अपनी मर्जी से उल्ट सुल्ट करवा रहे थे, ठीक है. देवर कंट्रोलिंग देम, देवर करप्टेड, ठीक है. इफ यू वांट टू बी फ्री ऑफ योर सिन, यू हैव टू पे दिस मच मनी, इट इज रिटन हियर द बुक. किताबें उनसे पढ़ी नहीं जा रही है, लैटिन उनको आती नहीं है. तो दीज प्लेज, द लिटरेचर हैज प्लेड अ मैसिव रोल टू सेट द पीपल फ्री फ्रॉम द चेन्स, ठीक है. तो फर्स्ट ये, और सेकंड ये ट्रू है हमारे, ये ट्रू नहीं है. यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि मिस्ट्री प्लेस ड्रामेटाइज बिब्लिकल इवेंट्स फ्रॉम क्रिएशन टू लास्ट जजमेंट इन साइकिल लाइक यॉर्क, वेकफील्ड, परफॉर्म्ड बाय गिल्ड्स ऑन पेजेंट वैगन्स पे परफॉर्म होती थी, वर्नाक्युलर इंग्लिश में बोली जाती थी फॉर पीपल एडिफिकेशन. Lives of Saint defines miracle plays separate from mystery, biblical stories, morality, allegory. Characters in mysteries are historical. Mystery में क्या होते थे? Character historical होते थे.
religious figure like God होता है, Noah होता है, Herod होता है, who created the world. All these people are being presented here. Abstract personification नहीं होता था, वो morality plays में हमें दिखने को मिलता था. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, which is I think also a last question. Which of the following is not true about the Spanish tragedy? Spanish tragedy किसका प्ले है? ये थॉमस किड का प्ले है. और एक आपने मेहरबानी यहाँ पे ये भी कर देनी है कि आपने थॉम स्पेनिश ट्रेजेडी का पब्लिकेशन डेट आपने कमेंट सेक्शन में लिख देना है. सो आई कैन नो दैट हु आर द स्टूडेंट्स who are actively engaged, being benefited from these videos. I will I will reply you there. If you will write this correct date, I will I will give you thumbs up there, right? And if you have any other query, तो उन queries को भी लिखना है. इस वीडियो में कुछ चीज आपको समझ नहीं आई है, किसी पर क्लैरिटी चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं. आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सी यूनिट का रिवीजन करना है, उसे भी आप मेंशन कर सकते हो. ठीक है. बाल्थाजार किल्ड द स्पेनिश ऑफिसर डॉन एंड्रिया. डिड ही डू इट? Balthazar falls in love with Belimperia. He did. He killed the Don Andrea. Balthazar was avenged by Hieronymo at the end of the play. Yes, he did. Hieronymo fell in love with the Belimperia. He did not fall in love with her. He wanted to take the revenge on the people killed his son. So Hieronymo, the knight marshal, seeks revenge for his son Horatio's murder by Lorenzo and Balthazar. He never loves Belimperia. Their alliance forms solely through her blood-written letter exposing the killers. ठीक है, तो ये हमने अपना जो रिवीजन था इन 30 क्वेश्चंस के थ्रू किया. आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें जाननी होती हैं, किस तरीके से हमें इसको प्रिपेयर करना चाहिए इन क्वेश्चंस को एग्जाम्स के लिए. ठीक है, वो सब चीज़ें आपको पता चली होंगी. और ये हमारा स्टडी मटेरियल है, 6 बुकलेट्स हैं आपके. आपका ये इंटायरली एग्जाम ओरिएंटेड ये जो स्टडी मटेरियल रहता है, आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एससेट की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी इंग्लिश लिटरेचर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, दिस स्टडी मटेरियल कम्स हैंडी. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस हैं. ठीक है, आपको एक इंटायरली एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल चाहिए, हियर आर द 6 बुक यू. ठीक है, प्राइस इसका 5500 रहता है और आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे. ठीक है, so we'll see you soon guys in the another video where we will be do the revision on the another important unit before our 5th of the January. Quickly करेंगे चीजें. All the very best. We'll see you soon.